Good morning, students. Again, you are most welcome in the online classes. As you know that we have discussed electricity in running classes. So this is your topic in science, class 10th science. और इस टॉपिक के अंदर यदि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर, तो हमने डिस्कस किया था आपका इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब और इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट. टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट electric potential. After the running classes, this is the first video of the topic. So what is electric potential? Electric potential is the electric potential energy per unit charge is called electric potential. Means we can say electric potential is equal to electric potential energy, electric potential energy को यदि हम डिवाइड करते हैं चार्ज से, so we can find the electric potential. And now what is electric potential difference? अब हमें क्या देखना है, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी per unit charge is called electric potential. Now what is the difference? And we calculate the difference between any 2 points. Suppose that we have the 2 points A and B, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से A से लेकर के और B तक कितना चार्ज, कितना वर्क डन क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, उसके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. मींस द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेकर और बी तक कितना यूनिट चार्ज फ्लो, कितना यूनिट चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसके द्वारा जो वर्क डन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सपोज दैट इफ W इज द वर्क डन, वर्क डन क्या है आपका, वर्क डन दैट इज W एंड द चार्ज दैट इज Q. सो डिफरेंस बिटवीन क्या आ जाएगा, इफ W इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू point B, so we can write as VB minus VA is equal to आपका आ जाएगा work done upon charge. This is the VB minus VA, that is the potential difference. Potential difference. तो work done कहां से कहां तक है, नोट करेंगे, that is A to B upon Q, and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. As you know that what is scalar? Scalar means those quantity which have only magnitude but there is no direction is called scalar quantity. And this electric potential difference is a scalar quantity.
It is a scalar quantity. And now we are talking about the unit. What is the unit? Unit क्या हो जाएगी? ये देख लेते हैं. वर्क की यूनिट होती है आपका जूल, and the unit of charge, that is coulomb. Means 1 joule upon 1 coulomb is the SI unit of potential difference. And एलिजेंड्रो वोल्टा के नाम पर इसको हम किस नाम से जानते हैं? That is called 1 volt. इसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट के नाम से जानते हैं. तो ये क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी विल डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखेंगे. Now let's see the definition of 1 volt. 1 volt. This is the SI unit for potential difference. And how we can define? We can define it that 1 volt is the potential difference between 2 points. किन्हीं भी 2 points के बीच में क्या करते हैं? 1 volt को हम measure करते हैं. And 1 volt is the potential difference between 2 points when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. So 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. ये हमने फाइंड आउट किया. पीछे फॉर्मूले के अंदर देखा जो रिलेशन था. तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. या हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज जूल कूलम इनवर्स. जूल कूलम इनवर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट. नाउ वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन दिस फॉर्मूला. जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी हमने गेन किया था. क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q. इसके ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? Calculate the amount of work done. Calculate the amount of work done. हमें क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है. टू कैरी 4 कूलम. टू कैरी 4 coulomb of charge. 4 coulomb of charge from a point of, कहां से कहां तक? From a point of 100 volt to 100 volt to a point at 120 volt. So as you know that what is the way to calculate the numerical. Now let's see the solution. So first we will note down what are the given values. क्या क्या given values हैं? हमें क्या कैलकुलेट करना है? That is work done. To be calculated if Q, that is 4 coulomb, and the potential difference. Now potential difference निकालेंगे. That is delta V is equal to क्या हो जाएगा? 120 minus 100 volt. कितना आ जाएगा? 20 volt. Formula according to formula V is equal to W upon Q. W is equal to क्या हो जाएगा? 2 into V. उनकी वैल्यू आपका 4 coulomb multiply 20 is 80 और
वर्क डन की यूनिट कितनी है, जूल। आंसर आ जाएगा आपका 80 जूल। वर्क डन आएगा आपका 80 जूल। नाउ मैं इसको फिर एक बार कैलकुलेट बता देता हूं आपको। यहाँ क्या करना है बच्चे, हमें वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन वैल्यूज हैं, ये गिवन वैल्यूज हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है। चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो बोल रहा है कि 100 वोल्ट से और 120 वोल्ट के बीच में क्या निकालना है, वर्क डन। इसको ले जाकर कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, तो भी कैलकुलेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा 20 वोल्ट। फॉर्मूला होता है V = W/Q। W को बाहर ले लेंगे, W = क्या आ जाएगा, Q की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ क्या 1 करके Q की क्रॉस मल्टीप्लाई, W बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा Q × V, 4 × 20। योर आंसर इज 80 जूल। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Now, our next numerical is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. So, in this numerical, what are the given values? Solution. Work done to be calculated. Charge Q is equal to 2 coulomb and potential difference is 12 volt. Potential difference V is equal to 12 volt. So according to formula, W is equal to Q into V. That is Q 2 multiply 12. That is 24 joule. Now what रहेगा आपका 24 joule. So on behalf of this formula, these are the numerical problems. Now आप अपनी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखेंगे। बस तरीका यही है कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है, वो हमारा पहले लिखना है, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। ये आंसर आ गया इसका। आप अपने बुक से क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कॉम्पोनेंट। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कॉम्पोनेंट। क्या होता है, देखिए जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं फिजिक्स में यूज होने वाले, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर यूज होने वाले, हम उनके सिंबल को सबसे पहले मतलब देखेंगे। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का? इलेक्ट्रिक सर्किट हम इसको कहते हैं, लेट्स सी इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या है? दैट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लोड्स एंड स्विचेस एंड अदर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वायर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट यानी क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर लोड और वायर, ये सब एक साथ यदि जुड़ जाएं तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट से ही आता है आपका सर्किट डायग्राम, कि किस तरीके से जुड़ते हैं। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होता है, यानी ये जितने भी क्या है जी अप्लायंसेज हैं, अगर हम उनको एक सिंबॉलिक वे के द्वारा और एक मैनर के अंदर यदि हम सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक ड्राइंग ये शो करता है, तो उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। सर्किट डायग्राम मींस ए ड्राइंग शोइंग द वे द इलेक्ट्रिक डिवाइस, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, आर कनेक्टेड इन ए सर्किट इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम, और इसी को हम क्या कहते हैं, schematic डायग्राम कहते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन, ये क्या होता है, क्या है, ड्राइंग है, किस तरीके से अप्लायंसेस क्या हो रहे हैं, सर्किट के अंदर जुड़े हुए हैं, जितने भी अप्लायंसेस सर्किट
के अंदर जुड़े हुए हैं वो सब एक क्या बनाते हैं, एक मैनर क्या शो करते हैं, ड्राइंग को शो करते हैं, उसी को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब जब बात करते हैं डिवाइस और उन डिवाइस को जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसके अंदर यूज होते हैं उनको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, उनका सिंबल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिवाइस आती है आपका कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को हम कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वायर्स जॉइंट। सेकंड वन इज वायर्स जॉइंट। जॉइंट वायर को हमें कैसे शो करना है, जॉइंट वायर को हम शो करेंगे इस तरीके से। जॉइंट वायर। थर्ड वन है आपका वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग को हम शो करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट वायर क्रॉसिंग के बाद आता है आपका रेजिस्टर, and the symbol of resistor is this। हम रेजिस्टर को इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टर। एंड आफ्टर दैट वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर की अगर हम बात करें, ये आ गया आपका वेरिएबल रेजिस्टर। इसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। बाय दिस वे वी सिंबलाइज वेरिएबल रजिस्टर। इसके द्वारा हम वेरिएबल रजिस्टर को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट डिवाइस है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट, तो रियोस्टेट को शो करने के लिए किसी भी सर्किट के अंदर हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। इस सिंबल के द्वारा हम रियोस्टेट को शो करेंगे। एंड आफ्टर दैट रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स में आ जाता है आपका, रेजिस्टेंस बॉक्स को इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं। आफ्टर दैट पिलर की, और ये भी कैसी है, ओपन। पिलर की को हम इसके द्वारा शो करते हैं। अगेन पिलर की आ जाएगी आपकी क्लोज्ड। क्लोज्ड पिलर की को हम इसके द्वारा शो करते हैं, इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं। देन टैपिंग की आती है, टैपिंग की। इस सिंबल के द्वारा हम टैपिंग की को शो करते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सिंबल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल। दिस इज इलेक्ट्रिक सेल। नाउ बैटरी। दिस बैटरी, a group of electric cell is called बैटरी। ये बैटरी का सिंबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, एंड, और हमें शो करना है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी को शो करते हैं। आफ्टर दैट गैल्वेनोमीटर। ये साइन हो गया आपका
कि वोल्ट मीटर को हम जो होता है पैरेलल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल में जो होते हैं, और एमीटर को सीरीज के अंदर हम ऐड करते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। ये इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। आगे इस टॉपिक के अंदर ये सर्किट और ये कंपोनेंट आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से आसानी से समझ आएगा। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा, हम बात करेंगे ओम्स लॉ और देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, on behalf of this video, you can prepare these symbols of these devices and numerical करना मत भूलना। तब तक के लिए have a nice day. Thank you very much. Okay.